ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਠੰਡ, ਕੋਹਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਇੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਇੱਟ ਦੇਈ, ਦੋਮ ਜਾਂ ਸੋਮ ਇੱਟ ਨਾ ਦੇਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਤਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ किस तरह की है। देखो, सेहत तो लगातार नाजुक होती जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन कल जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, निश्चित तौर पे उनको एक ऊर्जा मिली है। वो काफ़ी दिनों से सो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जो कल हमें वॉलंटियर्स ने बताया जो उनके साथ रहते हैं, कल वो लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए उनको देख के कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि भी जरूर मिली कि भाई जिस समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो समाज पूरा मेरे साथ खड़ा है, चाहे पंजाब के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो। जिस तरीके से हरियाणा के नरवाना से लेके पंजाब के पातड़ा तक जाम की स्थिति थी, तो निश्चित तौर पे उनको एक ऊर्जा मिली है और अनशन उनका एज इट इज़ जारी है। हेल्थ को लेके, उनकी तबीयत को लेके कल बड़े एहतियात बरते गए और मैं विशेष तौर पे जो डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर स्वाइमान की टीम है, जो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए थे बाहर से, उनका भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ मोर्चे की तरफ से, क्योंकि जितने एहतियातों के साथ उन्होंने डल्लेवाल साहब को उनकी ट्रॉली से लेके वो स्टेज तक लेके गए और फिर स्टेज से सुरक्षित वापस ट्रॉली तक लेके आए, वाकई में जो उन्होंने मेहनत करी है वो काबिले तारीफ़ है। वो पहले दिन से ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कल का जो उनका वर्क था, कल का जो उनका काम था, वो बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और एक बार उनका बीपी जरूर डाउन आने लग गया था जब वो बोलने लगे थे, भावुक हो गए थे, लेकिन हमने उनको थोड़ा, क्योंकि जब बीपी डाउन आ गया तो हमने उनको बोला भी था कि भाई आप थोड़ा कम बोलिए या ना बोलिए, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान जब ऐसी स्थिति में होता है तो वो भावुक होता है और उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो बीपी डाउन आने के बाद भी जब मैं और काका सिंह कोटला जी उनके साथ खड़े थे, तो हमने उनको कहा कि भाई आप आगे मत बोलिए, बीपी डाउन आ रहा है, जैसे ही डॉक्टरों ने हमें बताया, और वो मॉनिटर भी लगा हुआ था। तो वो बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे बोलने दो मुझे। तो फिर उनकी भावना का सत्कार सम्मान करना भी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 डिग्री ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ। देखो, कल क्या होता है कि जैसे जब बड़ी स्टेजें लगती हैं तो वो हल्की फुल्की वो वाइब्रेट भी करती हैं, तो जब स्टेज वाइब्रेट कर रही थी तो उनको चक्कर भी आ रहे थे, उन्होंने स्टेज पे ही ये बताया। लेकिन स्थिति तो देखिए, निश्चित तौर पे जब 40 ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, थोड़ा सा उनको उस तरीके का हो रहा था उस समय, शाम तक इस तरीके की स्थिति ਰਾਤ ਨੂੰ बन ਕੁਝ रही ਨਹੀਂ थी। ਹੋਇਆ। रात को देखो, मैं 8:30-9 बजे के आसपास वो सो गए थे वो थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर हमने सबने ये सोचा कि उनको रात को Rest. परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
तो अक्सर वो सुबह, क्योंकि बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं। और कल थोड़ा-सा, जो पहले वो पूरी-पूरी रात नहीं सोते थे, तो कल रात को 10 बजे के आस-पास वो सो गए थे। बाकी हम सारी टीम थी, वो पीछे सारा वर्क उसको समेट रही थी, जो पूरे स्टेज थे, बिल्कुल। सारे इंतज़ाम देख रहे थे। लोग भी कल रात को और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, तो उनकी भी देख-रेख कर रहे थे। तो इसलिए फिर हमने रात को उनको परेशान नहीं किया। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता, तो उसकी उम्मीद, अंतिम उम्मीद उसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पे संज्ञान लेके केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने चाहिए कि भाई, संसद की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, हमारी कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट है, आप एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए। और मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, बड़े रेपुटेड पेपर में, जब पिछली बार की हियरिंग हुई थी, तो उस हियरिंग के दौरान एक बड़े पेपर ने कवर किया है। तो उसमें फ्रंट में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इट्स स्टैंड ऑन एमएसपी गारंटी लॉ। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देता है, तो वो निश्चित तौर पे एक वो स्वागत योग्य कदम होगा। बाकी देखो, नौजवान अब बड़ी संख्या में लगातार मोर्चे पे आ रहे हैं। और मेरे साथ जैसे हमारे साथी हैं, सिरसा से हैं, गुरलाल भंगू जी हैं, तो इन्होंने ये गाने लिखते भी हैं, गाने गाते भी हैं, और सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे लिखते और गाते हैं, आंदोलनों पे ही लिखते गाते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इन्होंने जैसे एक नया गाना बनाया कि बूढ़ा जनरल डल्लेवाल दिलिए। तो ये एक सिर्फ एक गाना नहीं है, ये लोगों की भावना है। इनके मामा जी बहुत सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट, आईसीयू में एडमिट है, उसके बावजूद ये यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डल्लेवाल साहब भी हमारा परिवार ही है। तो एक जो लगाव है लोगों में, वो अभी स्मरणीय है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, अविश्वसनीय है और ऐतिहासिक है। तो निश्चित तौर पे हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से कल डल्लेवाल साहब के पोते जिगर जोत से भी जब पत्रकार पूछ रहे थे, तो उसने भी जवाब दिया कि डल्लेवाल साहब ने उसे भी कहा है कि हम 100% ये लड़ाई जीतेंगे। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। देखो, हम हमेशा यूनिटी विद प्रिंसिपल्स, एकता विद सिद्धांत, हम उसके हमेशा हिमायती रहे हैं। और एकजुटता हमेशा होनी चाहिए, एकजुटता से ही बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। और देश का किसान धीरे धीरे करके पूरे तरीके से एकजुट हो रहा है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੰਡ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜੇ ਹੈ ਰਾਹਤ ਆਏ। कैमरामैन सुमित दे नाल नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा टीवी।